Hare Krishna. We'll begin our session with prayers. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Radha Vrindavan Chandra ki jai, Shri Gaur Nitai ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Welcome you all for this session on Bhagavad Gita. तो आज हम 5वें अध्याय में प्रवेश करेंगे. We starting off with chapter number 5. Like always, before we start any chapter, कोई भी अध्याय प्रारंभ करने से पहले हम उस अध्याय का ओवरव्यू करते हैं, अवलोकन करते हैं. So for chapter 5 also, today's session will be an overview, a bigger picture of what we can expect in chapter 5. Chapter 5 इसका नाम है कर्म योगा, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. तो 5वें अध्याय का नाम है कर्म योग, कृष्ण भावनामृत में कार्य करना. तीसरे अध्याय का नाम था कर्म योग, लेकिन 5वें अध्याय का नाम है कर्म योग, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. तो the third chapter was called Karma Yoga, and the 5th chapter is now being called Karma Yoga, Action in Krishna Consciousness. मतलब डिफरेंस क्या हो गया? The phrase action in Krishna Consciousness. तो ये डिफरेंस कैसे आया? How did the 3rd chapter and 5th chapter change from Karma Yoga to Karma Yoga, Action in Krishna Consciousness? कृष्ण भावनामृत में कार्य करना. क्योंकि बीच में एक अध्याय आ गया जिसका नाम था, चौथे अध्याय का नाम क्या था? दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज. तो पहले कृष्णा, फर्स्ट चैप्टर में तो निरीक्षण हुआ, सैन्य निरीक्षण का, पहले दुर्योधन की दृष्टि से, फिर अर्जुन की दृष्टि से. So we had Duryodhana perspective of the war and the current situation, and we had Arjuna's perspective of the war and the current situation. फिर हमने दूसरे अध्याय में कृष्ण भगवान, जब अर्जुना ने उनसे इंस्ट्रक्शंस मांगा, तब कृष्णा उनको भगवत गीता का बोधन प्रारंभ उन्होंने किया. So when Arjuna requested Krishna by saying that I surrender to you, I accept you as my guru, it is then that Krishna began speaking the knowledge of Bhagavad Gita. He started instructing Arjuna. उससे पहले अर्जुन और कृष्णा का वार्तालाप तो चल रहा था. बहुत एक अर्जुन बोल रहा था, बड़बड़ कर रहा था. Krishna patiently he was hearing. And Krishna at that time was hearing as a friend, क्योंकि वो दोस्त थे, मित्र थे. तो एक मित्र के बातों को वो सुन रहे थे. जब अर्जुन ने, और he was also doing joking, friendly joking, क्या हो गया तुम्हें? पार्था, एक पार्था, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम नपुंसक की तरह क्यों बातें कर रहे हो? Why are you talking like eunuch? So on a friendly platform he was speaking to Arjuna. लेकिन जब अर्जुना ने
मांग किया, कृष्णा मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं आपके शरण में आता हूं और आप मेरे गुरु मानता हूं. So when Arjuna said, Krishna, I'm not able to understand what is right and what is wrong at this point of time. Whether I should fight this war, not fight this war, the rationale for this war, I'm not able to digest it. So please instruct me. Please become my guru. It's only then that Krishna started speaking Bhagavad Gita. उससे पहले भगवद गीता का बोधन कृष्णा ने नहीं किया. He immediately took charge as a spiritual master. So what is that we are learning from here? So we are learning that Krishna is Supreme Lord. He is Paramatma sitting in everybody, but he will respect our individuality. So sitting in the heart, he will be a witness and he will be a sanctioner. हमारे हृदय के अंदर बैठ के कृष्ण भगवान परमात्मा के रूप में, अंतर्यामी के रूप में सब देख रहे हैं. और जब कोई उसको याचना नहीं कर रहे, कोई उससे मदद नहीं मांग रहे, वो उसमें कूद के मदद नहीं करेंगे. बिकॉज बिन पूछे मदद कोई अगर करेगा, उसका वैल्यू कम हो जाएगा, दूसरा व्यक्ति उसका वैल्यू समझेगा नहीं. अच्छा, कोई इमरजेंसी है, किसी का प्राण जा रहा है, तब बिना पूछे हमें करना चाहिए. बट ये डिसीजन के मामला है. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ मेकिंग अ डिसीजन, द क्वेश्चन ऑफ अ पर्सपेक्टिव. अगर बिन पूछे हम किसी को सलाह देंगे और जब an unwanted advice is given according to him, तो वो हमें not only he can snub us, he can also insult us. And by doing that to the Lord, an offense may be created, may be committed. So that's why Krishna is not jumping to answer or to give him instruction. But when Arjuna comes to the point of surrender and he accepts him as Guru, he immediately starts instructing him. So between third chapter and fifth chapter came a chapter called Transcendental Knowledge, Divya Gyan. तो पहले कर्म योग, कार्य करना, अच्छे कार्य करना. चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ. फिर पांचवें अध्याय में कृष्णा अभी कार्य करना, लेकिन माम अनुस्मरा, मुझे याद करते हुए वेद शास्त्र के अनुसार आपको कैसे कार्य करना है. हाउ टू वर्क in Krishna consciousness. That's why the chapter is called Karma Yoga, Action in Krishna Consciousness. So this is the connection between chapter 2, chapter 3, chapter 4 and chapter 5. हर chapter जुड़ा हुआ है दूसरे chapter से. So ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में ये बोला अर्जुन को, अर्जुन अब तीसरा अध्याय खत्म हो गया, अब मैं चौथा अध्याय प्रारंभ करूंगा. अब चौथा खत्म हो गया, अब मैं पांचवा अध्याय प्रारंभ करूंगा. ऐसे नहीं बोला उसने. व्यास देव ने उसको अलग अलग किया है हमारे इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए. फॉर अवर इजी अंडरस्टैंडिंग, व्यास देवा हैज पुट इट चैप्टर वाइज, बिकॉज़ वी आर सो डल दैट वी डोंट इवन नो व्हेन अ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन हैज स्टार्टेड एंड व्हेन इट हैज एंडेड. अब दूसरा टॉपिक चल रहा है, ये हमें पता ही नहीं चलेगा, बिकॉज वी आर मंद बुद्धि मंद भाग्य, ये उपद्रुतः, कलयुग का ये स्वभाव है. So Krishna has not spoken Bhagavad Gita like that, but the Bhagavad Gita has been put in chapters by Vyasadeva ji for our easy understanding. Okay. So दूसरे अध्याय में हमें क्या मिला? See, if the power goes off for too long, it's very likely that my internet connection will go off. The Wi-Fi will be on for 5 to 10 minutes. अगर बहुत देर करंट चला गया तो शायद लॉग ऑफ हो जाएगा. फिर जब थोड़े समय के बाद पावर आएगा मैं लॉग इन करूंगा. सो प्लीज ये ध्यान रखिए आप. मोस्टली जनरेटर डाल देंगे तो मुसीबत नहीं होगा. सो चैप्टर, लेट्स गो बैक टू द चैप्टर. चैप्टर 2 वाज समरी ऑफ कंटेंट्स ऑफ भगवद गीता समराइज्ड. भगवद गीता का जो व्हाट यू कैन से समरी स्टडी विस्तार में बाद में हुआ थर्ड चैप्टर से. उससे पहले एक संक्षिप्त रूप में कृष्ण ने पूरे भगवद गीता का ज्ञान बता दिया. सो इट वाज प्रिलिमिनरी नॉलेज ऑफ द सोल.
आत्मा के बारे में बात किया कृष्णा ने, और कैसे आत्मा भौतिक जगत में आके बंध गया है, मतलब how it has got entangled. And in the same chapter, Krishna, in the last 17 or 18 shlokas, 54 onwards to 72, he spoke about Buddhi Yoga or Krishna consciousness. Because it was a summary of everything, so Krishna consciousness was also covered in this chapter. तो बुद्धि योगा में क्या कवर हुआ? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग आउट ऑफ एंटाइलमेंट, जो भौतिक बंधन में हम फंसे हुए हैं उससे हम बाहर कैसे जाए, ये बात हुआ था। तीसरे अध्याय में क्या हुआ? तीसरे अध्याय में कृष्ण ने बात किया, कृष्ण टोल्ड अबाउट हाउ द पर्सन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ नॉलेज इज नो लॉन्गर हैविंग एनी ड्यूटीज टू परफॉर्म। अगर ज्ञान के स्तर पे कोई खड़े होके कार्य कर रहा है तो उसको कोई चीज बांध नहीं सकता, मतलब व्यावहारिक चीजें बांध नहीं सकता। तो चौथे अध्याय में क्या हुआ? व्हाट हैपेंड इन द फोर्थ चैप्टर? सो लॉर्ड टेल्स अर्जुना ऑल काइंड्स ऑफ सैक्रिफाइस कल्मिनेट्स इन नॉलेज। वो बोल रहे हैं कोई भी हम तपस्या करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे, यज्ञ करेंगे तो सब कुछ ज्ञान में मतलब एंड होगा। इट एंड्स इन नॉलेज, मतलब ज्ञान मिल जाएगा, ज्ञान प्राप्त होगा। तो कृष्णा ग्लोरीफाइज ज्ञान। तो इस चैप्टर में कृष्ण ने ज्ञान को महत्व दिया था, चैप्टर ही दिव्य ज्ञान है। एंड इट टॉक्स ऑफ एक्शन इन इनएक्शन एंड इनएक्शन इन एक्शन। कैसे कोई कार्य करते हुए भी अकर्म कर रहा है, जैसे कि कोई कृष्ण भावनामृत में काम कर रहा है, वो कार्य कर रहा है दूसरे लोगों की तरह, लेकिन वो अकर्म, मतलब उसको कोई रिएक्शंस एक्शन के लिए रिएक्शंस नहीं आएगा क्योंकि वो मार्गदर्शन से कर रहा है। और इनएक्शन इन एक्शन, और कोई कार्य कर रहा है और कृष्ण भावनामृत में कर रहा है तो उसमें कोई रिएक्शंस नहीं होगा। कोई कुछ कार्य नहीं कर रहा है लेकिन कार्य कर रहा है। कैसे? अगर मैं किसी समय कोई मुझे काम करना चाहिए और उस समय मैं नहीं करूंगा, वो भी एक कार्य है, मतलब ना करने का कार्य है, उससे भी हम बंध जाएंगे। When we have to do the right thing at a particular time and we fail to do that, then we are again getting bound in the shackles of entanglement. कर्म हमारे आवृत हो जाएगा, क्योंकि जब कुछ सही करने का समय था मैंने नहीं किया, कोई किसी को मार रहा है मैंने नहीं रोका, तो मैं भी उसमें भाग ले लिया। सिंपली लाइक जब हम देखते हैं ना मार्केट में कोई किसी को मार रहा है और लोग हाथ में हाथ बांध के देख रहे हैं, वो सब इम्प्लीकेटेड है उसमें, वो सब उस पाप में भागीदार हो गए। सो व्हेन वी सी समथिंग गोइंग रॉन्ग वी शुड नॉट keep quiet. We should at least try to do something in a Krishna conscious perspective. So Krishna also glorifies jnana and renunciation in the same chapter. चौथे अध्याय में ज्ञान को और त्याग को दोनों को प्रशंसा किया कृष्णा ने। So chapter 4 text number 41 में उन्होंने किया, chapter 4 text number 16 to 18 ज्ञान को प्रशंसा किया, 41 में ज्ञान और त्याग दोनों का प्रशंसा किया। And then 42, the last shloka of chapter 4, how it ended? Krishna is ordering Arjuna, you fight. दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद कृष्णा बोल रहे कि इस दिव्य ज्ञान से आपको युद्ध करना है। दिव्य ज्ञान मिल गया, इसका ये मतलब यानी कि आपको कार्य छोड़ देना है, नहीं। आप क्षत्रिय हो, you're a क्षत्रिय, you must fight. This is a dharma yuddha. It is your duty to fight this war. So he encouraged Arjuna to fight the religious war, the dharma yuddha, the yuddha for establishing the right. So many people say कृष्णा ने तो अर्जुन को मतलब छेड़ दिया युद्ध करने के लिए। He instigated Arjuna to fight. He did not instigate Arjuna. He instructed Arjuna to fight. What kind of a fight? Fight for the right cause. सही चीज के लिए आप युद्ध कीजिए, ये सही चीज है। कोई आतताई ना कब्जा करके बैठे और वो
राज्यभार नहीं कर पाएंगे, पूरा ध्वंस कर देंगे, वो लायक नहीं है राज्यभार करने का। मैं चाहता हूं कि युधिष्ठिर राजा बने क्योंकि वो धर्म राजा है। सो टू एस्टैब्लिश द राइट पर्सन इन हिज राइट प्लेस, Krishna has organized this war and Pandavas are going to be the instruments. तो चौथे पांचवें अध्याय it opens with a question again. तीसरे अध्याय भी प्रश्न से ही प्रारंभ हुआ, अर्जुन के डाउट्स थे। सेकेंड चैप्टर कृष्णा talked about the entire Bhagavad Gita, but still third chapter Arjuna starts with a doubt. जब कोई मोह का शिकार हो जाता है, when somebody is bound by illusion, then even when God is giving him instruction, it is not going into his head. तो लोग बोलते हैं ना, अरे तुम इतने मतलब मंद बुद्धि हो गए हो, इतना हार्ड हेडेड हो गए हो, भगवान भी आके तुम्हें ज्ञान देगा ना, तुम समझ नहीं पाओगे। ये अर्जुन के साथ भी हो रहा है कि भगवान खुद वहां खड़े होके पूरा भगवत गीता 10 मिनट में फटाफट दूसरे अध्याय खत्म कर दिया, पर अर्जुन के समझ में नहीं आ रहा है। अर्जुन के समझ में क्यों नहीं आ रहा है? मोह का शिकार हो गया है, आवृत हो गया माया से, योग माया का और कृष्णा का ये आयोजन था कि अर्जुन को ऐसा हो, वरना अर्जुन भक्त है, he cannot get into this situation. Krishna is bringing his devotee into a situation so that he can be the instrument for all of us to get that great knowledge of Bhagavad Gita. So तीसरे अध्याय में जो प्रश्न ओपनिंग क्वेश्चंस अर्जुन ने पूछा, वही प्रश्न फिर पांचवें अध्याय के ओपनिंग में अर्जुन फिर से पूछेगा। अगले क्लास में हम देखेंगे, द वेरी फर्स्ट श्लोका अर्जुन इज आस्किंग ए क्वेश्चन, कृष्णा इज वेरी पेशेंटली आंसरिंग। वन ऑफ द ग्रेट क्वालिटीज ऑफ अ प्रीचर गुरु इज, जितने बार भी शिष्य प्रश्न पूछेगा वही वही प्रश्न वो वेरी पेशेंटली आंसर करेंगे। ऐसा नहीं कि कितने बार पूछ रहे हो, मैं बोल नहीं पाऊंगा, again I cannot tell। हम बोलते हैं ना ऐसा, बार बार क्यों ऐसे पूछ रहे हो, एक बार बोलने से समझ में नहीं आ रहा। गुरु और इसमें कृष्णा हियर वो जगत गुरु, आदि गुरु, उन्होंने कभी अर्जुन के साथ ऐसे नहीं किया। कोई भी गुरु अपने शिष्य के साथ ऐसे नहीं करेंगे, इसलिए उनको गुरु बोलते हैं, क्योंकि वो ही इज ऑलवेज रेडी टू गिव इंस्ट्रक्शंस, हमेशा मार्गदर्शन देने के लिए तैयार बैठे हैं, कभी विचलित नहीं होते हैं। बार बार प्रश्न अगर उनके शिष्य पूछ भी रहे तो भी। सो हाउ डू वी नो जेन्युइन गुरु? ये भी एक लक्षण है, वो कभी भी हमारे प्रश्नों से विचलित नहीं होते, इरिटेट नहीं होते, नहीं बोलते कितने बार पूछ रहे हो, ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि उनको पता है कि मोह से हम सब बहुत बुरी तरफ फंसे हुए हैं। माया ने हमें झपड़ के मतलब पकड़ के बैठी है, strongly caught all of us. The Guru is very compassionate. He knows it's not easy to get out of Maya. So, तो डिफरेंस क्या है? तो कृष्ण ने इस बार कैसे उत्तर दिया? अब कृष्ण को पता है, अब मैं इसको एक और स्तर ऊंचा ले सकता हूं, I can go more deeper. So वही प्रश्न का उत्तर कृष्ण ने वही उत्तर दिया, लेकिन इन अ कृष्ण कॉन्शियस पर्सपेक्टिव, दिव्य ज्ञान के स्तर पे दिया उन्होंने, और गहरा ज्ञान उन्होंने दिया। वही टॉपिक, वही उत्तर, लेकिन गहरा ज्ञान। तो ये हम देखेंगे 5वें अध्याय में। आपको लगेगा कि अरे हमने तो ये तीसरे अध्याय में पढ़ा था, लेकिन अभी ज्ञान गहरा होने जा रहा है। सो कृष्णा आंसर्स अर्जुना's क्वेश्चन इन ग्रेटर डेप्थ। तो और गहराई के मतलब और गहराई में उत्तर अभी देने वाले हैं कृष्ण भगवान। तो 5वें अध्याय को 6 सेक्शंस में डिवाइड किया जाएगा। सो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 डिविजन्स। व्यासदेव ने ये डिविजन्स नहीं किया है, तो हमारे गुरु वर्गों ने, गुरु परंपरा के लोगों ने, वरिष्ठों ने ये हमें हमारा और भी डिवाइड करके हमें बोधन किया है, ताकि हमें समझ में आए, इन phases हमें समझ में आए। So the 5th chapter has been divided into phases. Although Vyasadeva did not divide the chapters further,
our Guru Parampara, Gurus have subdivided the chapters further so that we can understand things in a much better way. So it is for our reason that it has been done. So what is the first section? तो पहले पांचवें अध्याय में 29 श्लोकास आर देयर इन 5th चैप्टर. तो इसको क्या बोलते हैं? 29 श्लोका है और इसमें पहले श्लोक से 6ठे श्लोक तक 1 to 6 5.1 to 5.6 क्या है? निष्काम कर्मयोग. आपने सुना होगा क्योंकि हमने तीसरे अध्याय में भी वही किया था. स्टार्ट्स विद निष्काम कर्मयोग. फिर सेक्शन 2 दूसरे भाग 7वें श्लोक से 12वें श्लोक 7th श्लोका to 12 5.7 to 5.12 हाउ टू परफॉर्म निष्काम कर्मयोग. पहले उन्होंने बोला निष्काम कर्मयोग, फिर अभी उसको कैसे कार्यगत मतलब कार्य के रूप में लेके आ सकते हैं. दैट इज हाउ टू परफॉर्म निष्काम कर्मयोग कैसे करेंगे. 3rd सेक्शन 13वें श्लोक से 16वें श्लोक तक 13 to 16 5.13 to 5.16 ये क्या है? इट्स अ प्लेटफॉर्म ऑफ नॉलेज. दिव्य ज्ञान के चैप्टर में ऑलरेडी बहुत ज्ञान मिल गया, अब उसको ज्ञान और कार्यों के साथ सम्मिश्रित करते हुए कृष्णा इज गोइंग टू एक्सप्लेन. सो इसमें हम जानेंगे 3 तरह के कर्ता है. There are 3 types of doers. One is the living entity, another one is the modes of nature, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, और तीसरा doer है super soul, परमात्मा. So 3 types of doers. Who are they? One, the soul, the 3 modes of nature, and the super soul, परमात्मा. परमात्मा, त्रिगुण और आत्मा, ये तीनों करता है कोई भी कार्य करने में. केवल आत्मा ही काम नहीं करता है. इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मोड्स ऑफ नेचर एंड इट इज सैंक्शन्ड बाय सुपर सोल. 4th सेक्शन 14th सेक्शन है 17 to 26 5.17 5.26 17वां श्लोक से 26वां श्लोक तक. इसमें क्या कवर किया जाएगा? लिबरेशन बाय फोकसिंग ऑन सुपर सोल. कैसे आत्मा के ऊपर ध्यान करते हुए हम मोक्ष का प्राप्ति कर सकते हैं. This section covers this. Section 5, text number 27 to 28, 5.27 to 5.28. What do we call it? 27 से 28 तक. Liberation through अष्टांग योगा. A preview, एक संक्षिप्त रूप में अष्टांग योग के बारे में भी कृष्ण बात करते हैं. कैसे इससे भी हम मोक्ष पा सकते हैं. तो कृष्णा you see in Bhagavad Gita everything is covered. सारे योग के बारे में कृष्णा कवर करते हैं. देखिए इसका प्रमुख जो योग है जो भगवद गीता में उभर के आता है वो भक्ति योगा है. It finally ends with bhakti yoga, and of course Prabhupada is always inserting bhakti yoga in all chapters in all purports so that we stay focused on bhakti yoga. And the last sloka, छठा section is only one श्लोका. ये क्या श्लोका है? 29th श्लोका, 29वां श्लोका. ये हमें सिखाता है पीस ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ लिबरेशन. कैसे हम शांति पा सकते हैं मोक्ष के स्तर पे. इसको ये भी बहुत श्लोकों को स्पेशली बोला गया है पीस फॉर्मूला. हम देख रहे हैं ना कितना कमोशन हो रहा है लोक में, कितने युद्ध चल रहा है लोक में, कैसे शांति का वातावरण आ सकता है पूरे विश्व में. ये एक श्लोक से हमें समझ में आएगा. और पूरा अगर विश्व ये श्लोक समझ पाएगा और उसके माध्यम से अपने जिंदगी को निरूपित करेंगे सब लोग, सब जगह शांति रहेगा. शांति क्यों नहीं है? क्योंकि ये श्लोक का पालन नहीं हो रहा है. तो we'll have to wait till we come to 29th श्लोका. So that is the peace formula. So this is how chapter 5 is divided. पांचवें अध्याय ऐसे सेक्शंस में डिवाइड किया गया है ताकि हम आसानी से हंत में हमें ये समझ में आए. So
We have already learned in chapter 4 that inactivity is not a solution. कुछ भी ना करके बैठना कोई solution नहीं होता है, हमें कुछ करना चाहिए. We have to do something, and when we are going to do something, we have to do something worthwhile, जो हमारे मतलब जिंदगी को ऊंचा लेके जा सके, ऐसे कार्य को हमें करना चाहिए. और ऐसे कार्य हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ऐसा कार्य है? भक्तों के एसोसिएशन से, थ्रू द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, थ्रू द सरेंडर ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर एंड फॉलोइंग हिज इंस्ट्रक्शंस, एंड थ्रू द सरेंडर टू द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ. ये सब करने से हमें पता चलेगा कि हमें क्या कार्य करना चाहिए और कैसे करना चाहिए. और फिर we also learned in the fourth chapter itself how devotion focuses not on renouncing. भक्ति का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के एक जगह बैठना, वो भक्ति नहीं होता है. भक्ति मतलब सेवा, और सेवा करने के लिए कार्य करना पड़ेगा. आप ये नहीं बोल सकते मैं अपना परिवार का सेवा कर रहा हूँ. क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहा. ऐसे कैसे हो सकता है? मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ. सेवा मतलब कार्य करना. So devotional service is what is being taught to us in all the chapters of Bhagavad Gita. And devotion focuses not on renouncing the material. वो ये नहीं बोल रहा है कि भौतिक चीजों को त्याग दो. भौतिक जो दृष्टिकोण है उसको हमें त्यागना है. We have to give up the materialistic perspective. We have to look at everything in a spiritual perspective. जो भी है कृष्णा का है, जो भी है material है, spiritual है, कृष्णा का है. Whatever is there, it belongs to Krishna. And if it belongs to Krishna, so we must use it in the service of Krishna. तो यथारा उपयुञ्जता, उपयुञ्जता, जैसे कि उसको यूटिलाइज कर सकते कृष्ण भावनामृत में, वैसे यूटिलाइज करना. जैसे कि हमने अभी हम सब कंप्यूटर मोबाइल यूज कर रहे हैं. वी आर नॉट रिनाउंसिंग मोबाइल, वी आर नॉट सेइंग कंप्यूटर हम नहीं देखेंगे. ऐसा कभी कृष्ण भावनामृत में आपको सिखाया नहीं जाएगा. That's not correct. An intelligent person has created a computer. An intelligent person has created mobile. उसको कैसे यूज करना है वो बुद्धि से यूज करना है, क्योंकि वो गलत चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं. और भगवत गीता का ज्ञान पाने के लिए भी आप सब यूज कर रहे हो अभी. दिस इज इंटेलिजेंस. दिस इज स्पिरिचुअलाइजिंग द यूटिलिटी ऑफ ए मटेरियल थिंग. जो भौतिक चीज है उसको आप आध्यात्मिक स्तर पे इस्तेमाल कर रहे हो. यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल. प्रभुपाद जी ऑलवेज से दैट एवरीथिंग. तो इसलिए पैसे को भी हम इनकार नहीं करते. कोई आके डोनेशन दे रहा है, पैसा है हम टच नहीं करेंगे. नो, पैसा लक्ष्मी है. लक्ष्मी किसकी सेवा में यूज हो रहा है? लक्ष्मी हमेशा नारायण कृष्ण का सेवा करती है, तो उसकी सेवा में लगा हम लोग लगा देंगे. तो मंदिर में कुछ कार्य के लिए, कुछ फेस्टिवल में यूज हो जाएगा. तो आपका जो लक्ष्मी आपने दिया है, आपने जो डोनेट किया है, तो उसको मंदिर के कार्य गतिविधियों के लिए यूज किया जाएगा. दैट इज स्पिरिचुअलाइजिंग. आप ये डोनेशन कोई अनाथ आश्रम में दे सकते थे, वृद्धाश्रम में दे सकते थे. हम ये बोल नहीं रहे कि वो गलत है, लेकिन आपको कैसे पता है कि वो कैसे यूटिलाइज होगा वहां पे, है ना? सो वी नो हाउ द वर्ल्ड इज टुडे. ऑफ कोर्स द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, हमें कैसे पता मंदिर में कैसे यूटिलाइज हो रहा है? तो इसलिए अक्षय पात्रा में आपको अकाउंट्स जो है आपको सब साफ साफ ओपनली डिक्लेयर किया जाएगा. हर साल वेबसाइट में अनाउंस किया जाएगा. पूरा अकाउंट्स वेबसाइट में अपलोड हो जाएगा. मंदिर में भी आप आइए, फेस्टिवल में भाग लीजिए, आपको पता चलेगा कि कैसे विजृंभण के साथ, मतलब कृष्णा इज ग्लोरिफाइड. the festivals are celebrated in a very grand scale. तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हमारा पैसा सही यूटिलाइज हो रहा है. So what is devotion? Devotion is not renouncing material. Devotion means utilizing the material things and to reclaim the spiritual. हमारा जो
जो हमने खो दिया है, हमारे आध्यात्मिक जो स्थिति, आध्यात्मिक जो स्तर, जो स्थान हमने खो दिया है, वापस उस स्थान पे हमें जाना है. दिस इज व्हाट इज बीइंग थॉट इन भगवद गीता. सो भगवद गीता विम्सिकली रचना नहीं हुआ है. इसका हर श्लोक का अर्थ बहुत गहरा अर्थ है. जब भी आप पढ़ेंगे एक दूसरी बार तीसरी बार, आपका ज्ञान वर्धन होता जाएगा, बिकॉज the knowledge goes on becoming deeper. It might be the same shloka, same meanings, but your understanding becomes deeper and deeper and deeper. That's why मैं बार बार भगवद गीता, भागवतम पढ़ना चाहिए. So you see in Bhagavad Gita, like for example, how in a very systematic way, बहुत सारे योद्धा इकट्ठे हो गए थे. Lot of soldiers and generals were there on the battlefield, and each of them were very powerful. तो पहले भगवद गीता में पहले अध्याय में हमें पता चलता है कैसे कैसे लोग थे. सो वर्णन किया जाता है, मैं पढ़ रहा हूं, महेश्वासा, ये वर्णन है. ऐसे ऐसे लोग थे, छोटे मोटे लोग नहीं थे, ये बड़े बड़े योद्धा थे. और कैसे योद्धा थे? महेश्वासा, महारथा, वीर्यवान, नरपुंगवा, विक्रांत, भीमार्जुन समा, समितिंजया, नाना शस्त्र प्रहरण, अपर्याप्तम पर्याप्तम, अभिरक्षितम, शूर, अपराजिता, परमेश्वासा, महाभाव. ये पहले अध्याय में वर्णन हो रहा है. दुर्योधन वर्णन कर रहा है कैसे कैसे योद्धा है. मतलब वो अपने स्थिति को समर्थन कर रहा है कि मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं. उस उनके पार्टी में भी, पांडवों के पार्टी में भी ऐसे ऐसे लोग हैं. महायुद्ध हमने छेड़ दिया है. तो भक्त को इसमें क्या समझना चाहिए? Why is this being told? क्यों पहला अध्याय हमें पढ़ना चाहिए? ये जानने के लिए. छोटा मोटा युद्ध नहीं था, ऐसे ऐसे महारथी अतिरथी इकट्ठे हुए थे, इनका ये वर्णन चल रहा है. लेकिन इसके बावजूद कम सैन्य होते हुए भी पांडव का जीत सुनिश्चित था, क्योंकि वो धर्म के पक्ष में थे. और जहां धर्म के पक्ष में वो थे, उनके पक्ष में जनार्दना, येषाम पक्षे जनार्दना, जिसके पक्ष में जनार्दन कृष्ण है, उनका हार कैसे हो सकता है? तो पहला अध्याय में ही हमें सीख मिल रहा है कि जिस जगह पे कृष्ण खड़े हैं, जिसके साथ कृष्ण खड़े हैं, one who is having Krishna as his partner, he can never be a failure in his life. How to have Krishna as our partner? By being dharmic, by being righteous. So Krishna is telling openly, I want to establish the righteous Yudhishthira as the king. I don't want Duryodhana to continue. वो ध्वंस कर देगा, वो नष्ट कर देगा सब कुछ. So he is not supporting it. तो दुर्योधना का मेंटालिटी भी रिवील हो रहा है. तो पहले अध्याय में देयर आर टू पर्सपेक्टिव्स. वन इज अ नॉन डिवोटी पर्सपेक्टिव, दुर्योधना पर्सपेक्टिव चल रहा है. दुर्योधन ने कैसे देखा, एक भौतिकवादी कैसे परिस्थितियों को देखेगा. सो व्हाट वी आर लर्निंग, ए मटेरियलिस्टिक पर्सन्स व्यू पॉइंट. तो हमें थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि हम भी ऐसे ही सोचते हैं, हम भी मेटलिस्टिक है इसलिए ऐसे सोचते हैं. तो दुर्योधन का मेंटालिटी हमें पता चला 8वें श्लोक में इन दी फर्स्ट चैप्टर. फिर हमें पता चला कि व्हेन वी आर अटैच्ड वी मिस द ऑब्वियस एंड सी द इमेजिनरी. तो जब हम लौकिक चीजों में बंध जाते हैं तो हमें जो सामने दिख रहा है सत्य वो दिखाई नहीं देता है, हम कुछ और इमेजिन कर रहे हैं. तो वो वर्णन कर रहा है अपने योद्धा का, इसलिए हम जीतेंगे. भीष्म है, द्रोण है, कर्ण है, ये है, वो है, 11 अक्षौहिणी सैन्य है, हम उनसे ज्यादा है, हमारा युद्ध उनसे बेहतर है. मूर्ख ये भूल गया सामने कृष्णा है, आपके विरुद्ध खड़े हैं. तो कोई भी हो आपके साथ, इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है. तो he is not seeing the obvious that he is going to be doomed for failure no matter. नारायणी अक्षौहिणी सैन्य उसके पास था जो कृष्ण के सम थे, कृष्ण ने दे दिया था.
लेकिन उसने कृष्ण को रिजेक्ट किया दुर्योधन ने, और नारायणी सैन्यों को अपनाया, क्या फायदा? कोई भी फायदा होने वाला नहीं था। तो कृष्ण की चीजों को यूटिलाइज करना भौतिकवादी का ध्येय है अपने लिए, भक्त का ध्येय है कृष्ण के दिए हुए चीज को कृष्ण के सेवा में यूटिलाइज करना। कृष्ण ने हमें पैसा दिया है, जितना हमारे परिवार के लिए चाहिए और हमारे सेविंग्स के लिए चाहिए हम यूज करेंगे, बाकी हम कृष्ण भावनामृत में भगवान के कार्य में देंगे। दिस इज द वे ऑफ थिंकिंग। और उसके दूसरे श्लोक में ही पहले अध्याय में ही दुर्योधना's hate of पांडवास स्पेशली भीमा was evident। तो वो भीम के बारे में बात कर रहा है, मूर्खोदरा बोल रहा है, और भीमार्जुन समाधि, भीम के समतोलन कर रहा है अपने योद्धा को, बिकॉज उसको पता है कोई उसको मारेगा तो सिर्फ भीम मार सकता है। तो he knew that if somebody can kill him, it is going to be only Bhima, somebody who is as strong as Bhima। इसलिए वो कंपैरिजन कर रहा है, और भीम के प्रति उसको इतना ईर्ष्या था, वो उसके लिए इसके वजह से वो अंधा हो गया था, वो इतना अंधा हो गया था, वो कोई भी गलत काम करने के लिए तैयार था दुर्योधन। So why I'm going back to first chapter and telling all this? I'm trying to recollect how Bhagavad Gita is a very structured treatise। एक बहुत ही मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में भगवद गीता का ध्यान हमें अध्ययन हमें मिलेगा जब हम चैप्टर 1 से प्रारंभ करेंगे। तो उसी चैप्टर में हमें पता चल रहा है कि हाउ दुर्योधन हेटेड पांडवास एंड भीमा स्पेशली, एंड व्हिच इज द कॉज ऑफ दिस वॉर। ये युद्ध अहम की वजह से हुआ है, जो फॉल्स ईगो है उसकी वजह से हुआ। दुर्योधन कुछ श्लोक के बाद में बोल रहा है, वो मतलब खुश है, वो बोल रहा है कि मेरे लिए ये सब एकत्रित हुए हैं, मेरे सैन्य में सब लोग मेरे लिए प्राण भी देने के लिए तैयार। भविष्यवाणी भी कर दिया उसने, उसको पता है, एक्चुअली उसको पता है कि परमात्मा उसके अंदर भी है। तो परमात्मा बोल रहा है तुम गलत कर रहे हो। परमात्मा सामने भी भगवान बन के आए थे उनके सामने, और कृष्ण आए थे और उनको बोला था आप गलत कर रहे हो, मत करो, फिर भी उसने सुना नहीं, क्योंकि अहम फॉल्स ईगो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो अच्छे जो इंस्ट्रक्शन है उसको मानेगा नहीं। फिर हमने देखा कि 10वें श्लोक में हमने देखा दे बोलते ग्रेट मेटेरियलिस्टिक बीइंग, भौतिकवादी के लोग कैसे सोचते हैं। जो रोज हम देखते हैं लोग दौड़ रहे इधर से उधर टू वर्क प्लेस बैक टू होम, इतना मतलब टेंशन में। सो इट्स अ ग्रेट मेटेरियलिस्टिक बीइंग। ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा सुख आएगा। इस भ्रम में दुनिया दौड़ रहा है, इधर से उधर से इधर। So having everything without Krishna in center is useless to us। तो भगवद गीता में सिखा रहा है चाहे आपके पास सब कुछ हो बट कृष्ण आपके साथ नहीं है तो आपके पास ये बराबर है कि आपके पास कुछ भी नहीं, because one day it is all going to go away। So the Duryodhana delusion is being shown in श्लोका 7 to 10। तो पहले अध्याय में पहले पार्ट में दुर्योधना का डिल्यूजन, दुर्योधना का मेंटालिटी हमें पता चला। फिर अर्जुन का मेंटालिटी हमें पता, भक्त कैसे सोचेगा, और भक्त जब मोह का शिकार हो जाएगा फिर भी वो कैसे सोचेगा, और कैसे कृष्ण उनके मार्गदर्शन के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो ये हमने सीखा भगवद गीता से आज तक। इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो we'll be starting off with chapter 5 text number 1। I welcome you all for that session and invite you all for the session। Please be present। Thank you very much for joining me today। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram